الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو محمد سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، کلام اللہ شریف کی دو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. رب ذوالجلال ہمیں ان آیات میں جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وہ مقصد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر احسان فرمایا تو رمضان عطا فرمایا. احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: شعبان یہ جو مہینہ اب چل رہا ہے جس کے تقریباً 25 دن ہم سے جا چکے ہیں، اس مہینے کے آخری دن نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام سے. فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت عظمتوں والا، بلندیوں والا مہینہ ہے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. وہ مبارک مہینہ جس میں انسان اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ رمضان میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرائض پڑھے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو ان الفاظ میں بیان کیا جائے جو ہر
جو چیز ہر وقت انسان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے تو پھر شاید سمجھنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں، محلے میں، گلی میں، چوک میں، اسپتال میں، کسی بھی جگہ پر ایک آدمی آئے اور اعلان ہو کہ فلاں آدمی آیا ہے، وہ جس کے پاس 1 روپیہ ہے وہ 1 روپیہ اس کو دے، بدلے میں وہ آپ کو 70 روپیہ دے گا، تو ہر آدمی وہاں پر جانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ٹھیک تو کیا جو بیمار ہیں، جو چارپائی پر لیتے ہوئے ہیں، اس کو بھی لے جانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ پیدا نظر آتا ہے 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے ہمیں مل رہے ہیں۔ کسی غیر ملک جا کر کما کر نہیں، بلکہ اپنے گھر کے پاس، اپنے وطن میں یہ منظر ہو رہا ہے تو ہر انسان وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ تو دنیا کے پیسے ہیں جو آج چل رہے ہیں۔ آج سے 10 سال بعد یہی نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ کاغذ اس طرح ایک عام کاغذ ہے، اسی طرح کا یہ کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب کا معیار ہے، وہ ثواب جس طرح پہلے دن تھا اسی طرح آج بھی ہے، اور قیامت تک اس کا وہی معیار رہے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 70 ہے تو صرف 70 ملے گا، اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے۔ اور اسی آیت میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو وہ اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، جم در جم کر دیتا ہے۔ 70 ہے تو 70 کو ڈبل کر دیتا ہے، ڈبل سے آگے بڑھا کر 700 تک کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت اور قدرت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اعمال کے اندر جس قدر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اس اخلاص پر ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ فرائض کا ثواب، 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور دوسرا حصہ اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا نجات ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بڑا ہی بدنصیب ہوگا وہ شخص، وہ انسان جس کے اوپر یہ مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام ہے، ان کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ زندگی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، بار بار یہ مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ اگر اپنے آپ کو بدل لیا تو جو قبر کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کب تک رہے گی، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بارہا اس کی مثالیں بیان کی جا چکی ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی مثال دی ہے، خالدین فیہا ابدا، جو جہنم میں چلے گئے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا،
जन्नत में जो चले गए मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए वही रहेंगे। मुफस्सिरीन ने इसकी मिसाल दी है, जितना ये जहान है, शिमाल से जुनूब, मशरिक मगरिब, इस सारे मैदान को राई के दानों से भर दिया जाए, 50,000 साल के बाद एक परिंदा आकर उससे एक दाना खा ले, किसी दिन जाकर ये दाने खत्म हो सकते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी न खत्म होने वाली है। उस जिंदगी के लिए जो कुछ करना है, जब तक ये दोनों आंखें खुली है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। मगर न मौत के वक्त तो हर कोई मान लेता है कि हमारे रब मुझे आज़ादी अता फरमा दे, मुझे मुआफ फरमा दे। कब्र में जाने के बाद ये इंसान फिर फरिश्तों से इंतजार करता है, लेकिन फिर वहाँ पर इसकी खुदी नहीं जाती, क्योंकि दुनिया में जब भेजा गया था इसी मकसद के लिए आपको भेजा था कि अपने इस डर के लिए तैयारी करे, कब्र की तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे। अगर वहाँ दुनिया में रहते हुए तैयारी की होती है तो फिर कब्र के अंदर इंसान को आसानी होती है। यही नमाज है, खड़े होकर इंसान के सामने आ जाती है, यही रोजा है, खड़े होकर जिस्मानी सूरत में इंसान के सामने आ जाता है, सदका खैरात है, तिलावत है, जिक्र अज़कार है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, ये सारी चीजें वहाँ इंसान के सामने आती है। और जो अज़ाब के फरिश्ते हैं उन फरिश्तों को बंदे के पास नहीं आने देते। तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने ये तौफीक उसको दी है। हमें चाहिए हम इस कलाम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। जो लोग इस कलाम पाक के साथ जुड़ गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियां दी है। आज हम हर एक की हमारी ये कोशिश है, कोई जबान पर लाता है, कोई जबान पर नहीं लाता। रब ताला के साथ हमारा जो मुआमिला है, उसके कलाम के साथ हमारा जो मुआमिला है, वो सिर्फ मुश्किल के हद तक है। अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हुआ हूँ, तो मुझे अल्लाह की याद आता है और अल्लाह का कलाम भी याद आता है। लेकिन जैसे ही वो मुश्किल खत्म हो जाती है, न अल्लाह की याद रहती है, न अल्लाह के कलाम की याद रहती है। इस बात का हम जबान से इकरार करें या न करें, मजमूई सूरत हाल यही है, मजमूई पोजीशन इस वक्त यही है हमारी। और अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये मुशरिक लोग जब किसी किश्ती में बैठते हैं और वो किश्ती पानी के दरमियान पहुंचती है, फिर ये कहते हैं, अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमें यहाँ से बचाने वाले हैं, आपके सिवा कोई हमें यहाँ से बचाने वाला नहीं है। और यहाँ से अगर हम गिरते हैं तो सीधे मौत के मुंह में हम चले जाते हैं, बचाने वाला अगर है तो सिर्फ तेरी जात है। हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने आप को इस तौर पर जो है अपना मुआमिला अल्लाह तबारक व तआला के साथ न रखे, बल्कि मुआमिला खुशी का मकाम है, रबी का मकाम है। कोई भी मौका है अपने रब को राजी करने की कोशिश की जाए। अगर हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किलात में वो फिर भी हमारे काम आता है। कितना करीम और रहीम रब है हमारा कि अगर मुश्किल में पुकारे तो वो हमारे काम बना देता है। लेकिन हमने कभी उसको खुशी में नहीं पुकारा है, हम खुशी में भी उसको पुकारेंगे तो वो खुशी में भी हमें वही अदा करेगा जो हमारे किस्मत के अंदर है, जो हमारे नसीब के अंदर लिखा हुआ है। और नसीब अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब लिख दिया है। अब वो जो नसीब है, वो तकदीर जो है वो बदलता नहीं है। और अगर तकदीर बदल जाए तो वो दुआओं के साथ हो सकता है। अपने आप को दुआओं के जरिए हम मशगूल करें, इबादत के जरिए हम अपने आप को मशगूल करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें ये फरमाया कि रहमत और मग़फ़िरत और जहन्नम की आज़ादी, आप भी लोग आज़ादी की बात करते हैं और उठकर आ जाते हैं साल में एक दिन के लिए, हम आज़ादी चाहते हैं, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं एक जाग में डालकर इनको भेज दिया जाए वहाँ पर जहाँ आज़ादी होती है, ताकि आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारे। यहाँ क्यों आपने इनको कैद किया हुआ है? नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी जिस अंदाज में ये लोग करते हैं, इनको हया नहीं है,
ان को ये नहीं मालूम यही पैगंबर क़यामत के दिन हमारे काम आने हैं। लेकिन दुनिया के अंदर गैरों को खुश करने के लिए, अंग्रेजों को खुश करने के लिए उस पैगंबर तक भी गुजर जाते हैं, हद खराब कर जाते हैं। और इसी तरीके पर जो हमारे अफवाज हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह करने वाला है, लेकिन उसके बाद दिल का मकाम है, जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है वो हमारे फौज को दी है, और उस फौज के खिलाफ भी बातें करते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भेज दिया जाए उन लोगों को जो चंद मुट्ठी पर अनासिर है, उनको भेज दिया जाए वहां पर, ताकि जहां आज़ादी की जिंदगी है ये आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सके। और हमें मालूम है, हम जानते हैं कि वहां पर किस तरीके पर आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग मुसलमान मुल्कों के वहां पर जाते हैं उनके कुत्ते से ज्यादा वहां पर बेइज्जती होती है। एक कुत्ते को फिर भी वो रोटी डालकर देते हैं, लेकिन मुसलमान को वो कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं देते हैं। लिहाजा मेरे मुहतरम दोस्तों, ये जो दीन हमें मिला है, इस दीन के कदर की, इस दीन की जो है कदर करने की कोशिश की जाए। और अगर हम इस दीन से दूर भागेंगे, किसी दीन के अंदर आपको ये सुकून नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने ये पट्टियां उनको पढ़ाई है कि हम आज़ादी चाहते हैं, ये आज़ादी नहीं है, ये हकीकत में आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज़ादी तो ये है जो कुरान करीम को मानता है, जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को मानता है, वो इंसान आज़ाद है। और जो काफिर है, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, वो आज़ाद तो नहीं है। दुनिया की जिंदगी है, दुनिया काफिर, दुनिया की जिंदगी मुसलमान के लिए खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया में कोई हुक्म अल्लाह ताला का काफिरों के ऊपर वो नहीं मानते, नहीं उसके मुताबिक अमल करते, तो दुनिया में कोई मुश्किलात नहीं है। किसी भी दिन अल्लाह ताला ने उनका पानी रिज़्क़ जो है बंद नहीं किया है, काफिरों को भी दिया जाता है, मुसलमानों को भी दिया जाता है। लेकिन क़यामत के दिन फिर क्या होगा? यही काफिर जो आज़ाद थे दुनिया के अंदर, ये कैद में चले जाएंगे। मुसलमान दुनिया में जो कैद में थे, वो आखिरत में अल्लाह ताला उनको आज़ादी देगा और जन्नत की महल्लात के अंदर उनको दाखिल करेगा। तो ये जो महीना हमारे पास आ रहा है, अपने तमाम बातों को जो है हमने पीछे छोड़ देना है कि हम अब अगर अमल करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अमल करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक अमल करेंगे और अपनी जिंदगियों के अंदर वो मुबारक तरीके लाने की कोशिश करेंगे। ये रमजान उसकी इब्तिदा है। ये रमजान अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान को फजीलत अता फरमाई है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत तमाम उम्मत के ऊपर उनकी फजीलत है, इसी तरह रमजान की फजीलत है। मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस महीने के लिए पहले से दुआई की है। 2 महीने पहले नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई इसके लिए, रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दे और रमजान तक हमें पहुंचा दे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में रमजान से पहले हज़रात सहाबा किराम से खिताब फरमाते थे और उसको ये फरमाते कि ए लोगों, तुम्हारे ऊपर एक महीना आने वाला है जो रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है, और उसके अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। लिहाजा उस रात के अंदर इबादत करनी चाहिए। मेरे मुहतरम दोस्तों, जब रमजान शुरू होता है उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। और इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जो जन्नत के दरवाजे हैं, इसके बदले में वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि वो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इस महीने में रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रात सहाबा किराम से फरमाया, अगर आपकी ताकत हो तो आप किसी आदमी को रोज़ा अफ्तार करा दो, उस पर अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता फरमाएंगे, जहन्नम से खलासी नसीब फरमाएंगे, जन्नत में आपका दाखिला नसीब फरमाएंगे। हज़रात सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हम में से वो नहीं पाते, वहाँ गुर्बत का जमाना था, तंगी का जमाना था, खाने के लिए चीजें नहीं हुआ करती थी इस वापर मिकदार में। तो अल्लाह साहब किराम ने पूछा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को पेट भर कर खाना खिलाएं, आप एक खजूर से अफ्तार करा सकते हैं, पानी के एक बूंद से आप अफ्तार करा सकते हैं, दूध के एक बूंद से आप अफ्तार करा सकते हैं, आपको सवाब मिलेगा। और अगर आप किसी को पेट भर कर रोजा अफ्तार कराते हैं तो फिर उसके बदले में आपको जो मिलेगा वो एक बोतल से आपको पानी पिलाया जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल होने तक दोबारा उस बंदे को प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, ये फजीलतें हैं, ये छोटी छोटी फजीलतें हैं, इनको हासिल करने की कोशिश हम कर सकते हैं। हम रोजादारी का अफ्तारी कराने का इंतजाम हम कर सकते हैं, किसी जगह अफ्तारी है, मस्जिद में भी इंतजाम होता है, आप अपने तौर पर भी अपने महल्ले में कर सकते हैं। अपने दाएं बाएं देखकर बेहतर तौर पर मालूम होता है कि ये बंदा हकदार है, आप उसके साथ ताउन करें। गाय के लोग आ जाते हैं,
وہ حقدار ہے یا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن جو آپ کے اپنے محلے میں ہو آپ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو فضیلتیں ہیں یہ فضیلتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، جو دن باقی ہے ان دنوں میں ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، تاکہ رمضان میں جو نبی علیہ السلام نے اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہم کر سکیں۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پورا سال قرآن کریم گھروں کے اندر آزمائش میں پڑا رہا، اب قرآن کریم کو کھولنے کا وقت آتا ہے، شیاطین قید ہو جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیطانوں کو تنبیہوں میں لٹک کر باندھ دیا جائے گا، اور پھر پورا مہینہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ مساجدوں کی رونقیں بحال ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح رمضان میں ہمیں مساجد آباد کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح مساجد کو آباد رکھنے کی اور اپنے اعمال کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ کی عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔